پاکستان کے خلاف جو بھی سازش کر رہا ہے ان کے لیے معافی نہیں، سب کا بندوبست کریں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بولے، سیکیورٹی فورسز نے خارج کو 3 اطراف سے گھیر کر نشانہ بنایا، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان کو کس نے بھیجا، دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اسی طرح ماریں گے۔ کارروائی ان کے لیے بھی پیغام ہے جو پاکستانی فورسز اور عوام پر حملہ کرتے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف ہتھیار اٹھانے والے تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، بھارت نے کچھ بھی کیا تو اس کا جواب بھی ضرور دیا جائے گا۔ 25، 26 اور 26، 27 کی درمیانی رات کو ایک بڑا خوارج کا لشکر جو پاکستان کے اندر انٹر ہوئے میں 3 طرف سے ہمارے جوانوں نے ان کے اوپر اٹیک کیا اور 54 خوارج جہنم رسید کیے۔ ایک چیز ہم کو بتا دیں کہ بہت بڑا دنیا کے لیے ثبوت ہے کہ کس طریقے سے یہ دہشت گردی کی پشت پناہی کی جاتی ہے، کس طریقے سے ان کی کوئی تو فنڈنگ کر رہا ہے، ان کو کوئی تو بھیج رہا ہے، کسی کا تو کوئی موٹیو ہے، وہ سب کو پتا ہے۔ واقعے کے بعد اور زیادہ کنفرم ہو گئے ہیں کہ پاکستان سفر کر رہا ہے وہ کن کی وجہ سے کر رہا ہے۔ کسی بھی صورت میں اگر یہ دوبارہ کہیں سے داخل ہونے کی کوشش کریں گے، ہم اسی طرح ان کو پکڑیں گے، اسی طرح ان کو ماریں گے، چاہے وہ کسی بھی سائڈ سے آنے کی کوشش کریں، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے دہشت گردی کرانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان ساری سازشوں کو ہم ناکام بنائیں گے اور ہماری باقی سروسز ساری کی ساری اس ٹائم پہ اپنے ملک کے لیے ایک ایک سیکنڈ مانیٹر کر رہی ہیں، اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ اللہ نہ کرے ہوا تو انڈیا کو پتہ چلے گا کیا جواب ملتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ذاتی عمرہ میں پارٹی سربراہ نواز شریف سے ملاقات۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے پہلگام واقعے کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں پر نواز شریف کو بریف کیا۔ وزیر اعظم نے پہلگام واقعے کے پس منظر میں بھارت کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائیوں پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا، بھارت نے جارحیت کی تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پہلگام واقعہ پری پلان ہے، بھارت ماضی میں بھی اس طرح کے مختلف ڈرامے کر چکا ہے۔ سنتاس معاہدہ معطل کرنے جیسے فیصلے جنگی حالت میں بھی نہیں کیے گئے۔ نواز شریف نے کہا، پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے، ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کی غنڈہ گردی سرحد پار جا پہنچی، بھارتی شہریوں کا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن پر حملہ، عمارت کے شیشے توڑ ڈالے، انتہا پسندوں نے عمارت پر سرخ رنگ بھی پھینکا۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے پولیس کو شکایت درج کی، پولیس نے ایک انتہا پسند کو گرفتار کر لیا، ملوث دیگر شرپسندوں کی تلاش بھی شروع۔ گزشتہ روز بھی بھارتی شرپسندوں نے ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ بھارتی خفیہ ایجنسی نے شرپسندوں کو اکٹھا کیا، 4 نقاب پوشوں کو پاکستانی پرچم گرانے کا ٹاسک بھی سونپا گیا۔ برطانوی پولیس نے 4 نقاب پوشوں کو گرفتار کیا، بھارتی شہریوں کے ساتھ اسرائیلی بھی موجود تھے۔ بھارتی انتہا پسند پاکستان دشمنی میں پاگل ہو چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق لندن پاکستان ہائی کمیشن پر انتہا پسند بھارتیوں نے حملہ کر کے پاکستان ہائی کمیشن کی عمارت کے شیشے توڑ دیے۔ حملے کرنے والے شرپسندوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بھارتی خفیہ ایجنسی نے کردار ادا کیا، جبکہ بھارتیوں کے ساتھ ساتھ اسرائیلی شہری بھی جھنڈے اٹھائے شامل تھے۔ شرپسندوں میں 4 نقاب پوشوں کو ہائی کمیشن کا پاکستانی جھنڈا گرانے کا ٹاسک دیا گیا۔ بھارتی انتہا پسندوں نے ہائی کمیشن کے باہر دنگا پھیلانے کی کوشش کی، پولیس نے ایک شرپسند کو گرفتار کر لیا۔ جموں کشمیر سری نگر میں 15 سے 20 اسرائیلی اہلکار پہلے سے ہی پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن کے ارد گرد موجود پاکستانیوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ پاکستانی ہائی کمیشن عملے کے 6 افراد پرچم کی حفاظت کے لیے موجود تھے، تاہم حالات کو دیکھتے ہوئے مزید پاکستانی پرچم کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ پاکستانیوں نے ملی نغموں کے ذریعے بھارتیوں کے نعروں کو دبا دیا۔ بھارتی مظالم کے خلاف پینافلیکس کی نمائش بھی مؤثر ثابت ہوئی۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت اور اسرائیل کا یہ گٹھ جوڑ ثابت کرتا ہے کہ یہ پاکستان بالخصوص مسلمانوں کے خلاف یکجا ہیں۔ اسرائیل فلسطینی مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے اور اب مسلم نسل کشی کے لیے مقبوضہ کشمیر پہنچ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے برطانیہ اور چین کے وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کر کے پاک بھارت کشیدگی سے آگاہ کیا۔ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون کر کے صورتحال پر اعتماد میں لیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے مذاکرات کے ذریعے خطے میں کشیدگی کم اور تنازعات کے حل کی ضرورت پر زور دیا۔ اسحاق ڈار کا چین کے وزیر خارجہ سے رابطہ، پاک بھارت کشیدگی، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال، پاک چین کا علاقائی امن و استحکام ہر قیمت پر برقرار رکھنے کا عزم کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کی پیشکش کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ اور چینی کمیونسٹ پارٹی کے پولیٹیکل بیورو کے ممبر ونگ زی سے ٹیلی فونک گفتگو میں صورتحال پر بریفنگ دی۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے یک طرفہ اقدامات کے ساتھ بے بنیاد پروپیگنڈے کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کیا۔ نائب وزیر اعظم نے چین کی مسلسل اور غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے پاک چین
दोस्ती और शराकत दारी के लिए पाकिस्तान के मजबूत अज़्म का अदा किया। नायब वज़ीर आज़म ने तमाम शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद गहरा करने के अज़्म पर जोर दिया। अफ्रीकन ने बाहमी एहतराम और अफहाम तफहीम को फरोग देने और तसल्लुत पसंदाना पॉलिसियों की मुश्तरका मुखालफत की। दूसरी तरफ इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा तेहरान पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने मोदी सरकार को खुली वार्निंग दे दी है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत ने दरअंदाजी या हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहता है। वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि सिंतास माहिदा ख़त्म करने की धमकी देने वाले भारत आबी जारहियत पर उतर आया है। दरियाए जहलम में बगैर इतला के पानी छोड़ दिया। वज़ीर दिफ़ा का मक्कार दुश्मन को फिर दंदान शिकन जवाब का इंतबा। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश को भी दोहरा दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने दरअंदाजी की या हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। भारत ने कशीदगी ना बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफ़ा ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहता है। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम वाक़े की बैनुल अक़वामी तहकीकात की पेशकश की और कहा पाकिस्तान ऐसे किसी भी कमीशन या कमेटी को खुशामदीद कहेगा। वज़ीर दिफ़ा ने कहा सिंतास माहिदा ख़त्म करने की धमकी देने वाला भारत आबी जारहियत पर उतर आया है। ख्वाजा आसिफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपनी नहीं बल्कि सुपर पावर की जंग लड़ी। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की हिमायत करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। हमने हजारों जानें कुर्बान की और हमारी मईशत को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान। पहलगाम हमले पर भारतीय मौक़िफ़ मुस्तरद। UN में पाकिस्तान की सिफारतकारी काम कर गई। भारत को सलामती काउंसिल में मुंह की खाना पड़ी। सलामती काउंसिल से मर्जी का एलामिया जारी ना होने पर भारतीय मीडिया में वावेला शिकायतें करने लगे कि पुलवामा की तरह का सख्त एलामिया जारी नहीं हुआ। सलामती काउंसिल ने हमले की मजम्मत की। एलामिया में रुकन ममालिक को मुतल्लिका हुकाम से ताउन करने की हिदायत की। ज़िम्मेदारों का एहतसाब किया जाना चाहिए। पाकिस्तान और चीन की सिफारतकारी के बायस भारत मुतनाज़ अल्फाज शामिल ना करा सका। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान हायल दीवार है। जाफर एक्सप्रेस पर हमला सबके सामने है। भारत ने दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत नहीं की। वज़ीर इत्तलात अतातार की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले भारत पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी में मुलविस है। अमन के दुश्मन हथियार और फंड मशरकी बॉर्डर से हासिल करते हैं। सबूत दीगर ममालिक ने भी दिए। कुलभूषण यादव भी एक बड़ा सबूत। The Pahalgam episode which took place a few days back, we must understand first of all that Pakistan is a victim of terrorism. No other state has laid down 90,000 lives in the war against terror, and our economy has suffered losses of hundreds of billions of dollars, and we continue to counter these terrorists, the Fitna al-Khawarij, till date. That India is involved in state-sponsored terrorism. Pakistan has the capacity to respond effectively, like we did in the aftermath of the Pulwama incident. नाजरीन, भारत एक बार फिर इंसानियत भूल गया। फेफड़ों और दिल के ट्रांसप्लांट के लिए भारत जाने वाले आर्यान शाह की वालदा बेटे की मैयत लिए बगैर पाकिस्तान वापस पहुंच गई। भारतीय शहर चेन्नई के हॉस्पिटल में बकाया जात की अदम अदायगी पर आर्यान शाह की मैयत लवाहिकीन के हवाले करने से इनकार कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर आर्यान की वालिदा ने नुमाइंदा GNN राना खालिद महमूद से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त कराची के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और कोयटा के रिहायशी आर्यान जिसकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उसको इंडिया के शहर जो है चेन्नई में मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर उसका इलाज मुआलजा जारी था। उसकी बच्चे की वहाँ पर डेथ हो गई। पहले तो जी हम आपसे बहुत अफसोस करते हैं GNN की जानिब से कि आप जो है एक सदमे का शिकार हैं। मगर बलूचिस्तान हुकूमत ने 3.5 करोड़ रुपए का दिया था पैकेज ट्रांसप्लांट का, वो सारा खर्च हो गया। अभी इस टाइम जब मैं आ रही थी हम लोग उनके 37 लाख इंडियन 37 लाख जो पाकिस्तान के तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए बनते होंगे, 37 लाख 70 हज़ार कुछ रकम है जो हमारे ऊपर ड्यू थी। ये एक्मो मशीन के डेली के वो 2 लाख रुपए चार्जेस लेते थे इंडियन। 70 दिन मेरा बेटा एक्मो मशीन पे रहा। आप कभी सर्च करेंगे तो एक्मो मशीन ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन बंदे को रखना चाहिए। 30 दिन के बाद ये रिएक्शन करना शुरू कर देती है। क्या कहा गया? बॉडी के लिए बहाने बना रहे हैं वो लोग। मैंने उस अस्पताल में 2 महीने अकेले गुजारे हैं। जो सलूक वो लोग मेरे साथ पैसों के लिए करते थे, वज़ीर आला के जो PS हैं, मैं उनको रो रो के बताती थी कि ये आज ये कहा इन्होंने। ICU में मैं खड़ी होती थी और ये लोग मुझे कहते थे आप नीचे आ जाएं, आपसे बात करनी है। एक दिन में ये लोग 6 दफ़ा मुझे बुला के पैसों के बारे में तंग करते थे। अजीज ज़की चौहान
और हाई कमिश्नर पाकिस्तान और फॉरेन अफेयर्स, इन सब ने मिल के इनको 3 दिन के लिए खामोश करवाया। चौथे दिन मेरे बच्चे की डेथ हो गई। जी देखा, जैसे कि एक मां का ये कहना है कि उसके बच्चे की वहां पर डेथ होने के बाद उसकी लाश इनके हवाले नहीं की गई। एक मां अपने बच्चे की डेड बॉडी के बगैर आज कराची पहुंच चुकी है और अपने बच्चे की दस्ते खाकी का इसको शिद्दत से इंतजार है। जी आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली तेज़ तरीन बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला। इसी हवाले से फजीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में पहला इजलास हुआ। मरियम औरंगजेब ने मंसूबे की फिजिबिलिटी टाइम लाइन की तैयारी के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान, बशीर वज़ीर आला शाहिद तारड़, चेयरमैन रेलवे और CEO रेलवे पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप बना दिया। मरियम औरंगजेब वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आला पंजाब को पेश करेंगी। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान बजरिया वीडियो लिंक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट इमरान सिकंदर बलोच और सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आसिफ तुपैल इजलास में शरीक हुए। नए रेल रूट्स की निशानदेही की जाएगी, जबकि रेलवे हुकाम की रेल नेटवर्क और पटरी से मुतल्लिक इजलास को ब्रीफिंग भी दी गई। मरियम औरंगजेब का कहना था कि बुलेट ट्रेन का आगाज करके नवाज शरीफ और मरियम नवाज अवाम से अपना एक और वादा पूरा करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब का विजन है कि ट्रेन अवामी सवारी है, इसे जदीद मियार पर लाना है। लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन भी प्लान में शामिल है। फसीउल्लाह, GNN लाहौर। और सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं मुतनाज़ कैनाल्स का मसला चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हल हो चुका है। 2 मई को मुश्तरका मुफादात काउंसिल के इजलास के बाद ये मामला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तमाम सियासी जमातों और वकला बरादरी से गुजारिश है सड़कें खोल दी जाएँ। बंदिशों से अवाम, माल मवेशी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, किसानों और गरीब तबकात को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। गुड्स ट्रांसपोर्ट की रवानी को यकीनी बनाना है ताकि किसी को मज़ीद माली या मुआशी नुकसान ना हो। मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में हम सबको मिलकर समझदारी से फैसले करने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज़ के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दीगर भी मौजूद थे। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद है। औरंगज़ेब, मुलाकात में बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की शरीक जो शरीक चेयरमैन की सरबराही में वफ़द मुलाकात की है, जबकि मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत दीगर वफाकी वज़रा भी इस इजलास में जो है वो मौजूद थे। वफ़द का पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जबकि मुल्क में क्रिप्टो करेंसी जैसे माशी लेन देन के मुतबादिल तरीकों की तरवीज के लिए कवायद व ज़वाबित की तश्कील पर काम तेज़ी से जारी है। जबकि इस मौके पे जो आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के शरीक चेयरमैन ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इजलास के शुरा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम बहुत शुक्रिया।